Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. In the last class, we talked about the second method. Second method, when separate set of books are not maintained for joint venture. In this method, we discuss first point, each co-venture keeps record of his own transactions only. Under this method, we maintained mainly three accounts: memorandum joint venture account, joint venture with B's account, joint venture with A's account, in the books of A, in the books of B. Today we discuss part second, when separate set of books are maintained for joint venture are divided into two parts. First part we discuss in the last class, and today we will discuss about the each co-venturer keeps record of his own transaction as well as of other co-ventures transaction. Mean clear है, each co-ventures keeps record his own transaction as well as of other co-ventures transactions. मीन एक कोवेंचर अपने भी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर रहा है और वो अदर कोवेंचर्स के ट्रांजेक्शन्स को भी मेंटेन कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड. अंडर दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, एवरी कोवेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ all transactions of joint venture. For this purpose, two accounts are opened by every co-venture. Two accounts are opened by every co-ventures. There are two co-ventures A in the books of Sunil. So first co-venture name is Sunil and second co-venture name is Kapil. In the books of Sunil, there are two accounts are maintained, joint venture account and Kapil account. In the books of Kapil, other co-venture also maintained two accounts. First is joint venture account and Sunil's account. Joint venture account and co-ventures account personally. In this case, joint venture account is of the nature of trading and P&L account, which disclose profit or loss of the joint venture. Under this method, every co-venturer sends the records of his transaction to other co-ventures from the time to time to enable him to enter those transactions in his books. Then on the closure of joint venture account are settled. सिंपल मीन क्या था उसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सिंपल मीन सिंपल था कि फर्स्टली हम ये जाने कि हमारा सेकंड मेथड का सेकंड पार्ट है. ये हमारे सेकंड मेथड का सेकंड पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड. व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड. एंड सेकंड पार्ट इज व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड. दिस मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज each co-venture keeps record of his own transaction only, and second part is each co-venturer keeps record of his on as well as other co-venturers transactions. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे एक तरीके से कि हाउ कैन वी ट्रीट सेकंड पार्ट ऑफ व्हेन सेपरेट set of books are not maintained for joint venture. Simple. Each co-venture keep record his own transaction as well of other co-venture. Assumption करो A and B. There are two co-ventures. A and B are there are two co-ventures. A अपने ट्रांजेक्शन को भी मेंटेन करेगा, उसका भी हिसाब किताब रखेगा और वो B के ट्रांजेक्शन को भी का भी हिसाब किताब रखेगा. इस कंडीशन में ये भी दो अकाउंट ये भी टू अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ये भी टू अकाउंट्स मेंटेन करेगा. अब ये टू अकाउंट मेंटेन करेगा, ये टू अकाउंट मेंटेन करेगा, वो कौन कौन से होंगे? कंपलसरी है कि को-वेंचर इस मेथड में जॉइंट वेंचर अकाउंट उतने बनेंगे जितने को-वेंचर होंगे. मान लो देयर आर थ्री को-वेंचर्स, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट कितने मेंटेन होंगे? 3. देयर आर 4 को-वेंचर्स, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन कितने होंगे? 4. देयर आर 2 को-वेंचर्स, तो कितने जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन होंगे? 2. क्लियर है? लेकिन मेन चीज ये है कि ए अपना भी हिसाब रखेगा और वो बी का भी हिसाब रखेगा. पहले वो अपना हिसाब रखेगा, फिर बी का हिसाब रखने के बाद वो पूरा हिसाब बी को सेंड कर देगा.
ये पूरा जो भी पैराग्राफ मैंने आपको अभी रीड कराया था वो पूरा पैराग्राफ यही था कि ए अपना हिसाब भी रखेगा और वो अदर कोवेंचर का हिसाब भी रखेगा और वो अदर कोवेंचर के हिसाब की डिटेल उसको सेंड कर देगा, फिर वो मेंटेन करेगा। इस कंडीशन में सिंपल चीजों को फॉलो करेंगे अपन, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन था, मैंने इसलिए दिया था, अदरवाइज तो आपको कुछ समझना ही नहीं है। सिंपल चीज याद रखनी है, अजम्पशन कर लो। अजम्पशन करने में हमारा कुछ नहीं जाता। अजम्पशन क्या किया, एक सुनील है और एक कपिल है, देयर आर टू कोवेंचर्स। ये तो अजम्पशन कर ही सकते हो ना, ये तो इजी चीज है। सुनील एंड कपिल, सुनील है तो यहां पर अगर 2 कोवेंचर है बुक्स बनेंगी 2, अगर यहां 3 कोवेंचर है बुक्स बनेंगी 3। सिंपल चीज मेरी ये याद रखो, देयर आर 2 कोवेंचर सुनील एंड कपिल, तो एक तो बनेगी इन द बुक्स ऑफ सुनील, एक बनेगी इन द बुक्स ऑफ कपिल। बुक्स ऑफ सुनील में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना कंपलसरी है, इन द बुक्स ऑफ कपिल में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ये सुनील की बुक्स है तो जॉइंट वेंचर बनेगा और दूसरा बनेगा कोवेंचर का अकाउंट, कोवेंचर का नाम कपिल है। क्लियर है? इन द बुक्स ऑफ सुनील में एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा बनेगा कपिल अकाउंट। अगर ये इन द बुक्स ऑफ कपिल है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा और इसके साथ बनेगा सुनील अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सुनील अकाउंट। कपिल की बुक्स में सुनील का अकाउंट, सुनील की बुक्स में कपिल का अकाउंट। सर एक बार और बताओ, ये मान लो ये होता ए और ये होता बी। सर ये का मतलब है देयर आर 2 कोवेंचर्स ए एंड बी, तो यहां सुनील की जगह क्या आ जाता? ए, इन द बुक्स ऑफ ए। इसमें एक तो बनता जॉइंट वेंचर अकाउंट और इस कपिल की जगह क्या बन जाता? बीज अकाउंट। फिर ये इन द बुक्स ऑफ मान लो बी होती, क्या होती? इन द बुक्स ऑफ बी, तो एक तो बनता जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनता ए अकाउंट। सर समझ नहीं आया? समझने का कुछ है ही नहीं बेटा, सिंपल चीजें फॉलो करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अगर बुक्स राम की है तो एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा बनेगा दूसरे कोवेंचर का अकाउंट जो कि श्याम है। अगर ये इन द बुक्स ऑफ राम होता तो यहां बनता जॉइंट वेंचर अकाउंट और श्याम अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ श्याम में बनता जॉइंट वेंचर अकाउंट और राम अकाउंट। ये स्पेशल नोट है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा, और जब आगे हमारे काम ही आ रहा है तो हम इसको यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। एक एंट्री समझा रहा हूं, ये एंट्री बहुत काम आएगी, इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको स्पेशल नोट में लिख लेना, और फ्यूचर में जब भी मैं बात करूं स्पेशल नोट की तब यहां पर आ जाना। आप आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बोलूंगा स्पेशल नोट लर्न करो, स्पेशल नोट याद करो, रिमेंबर करो स्पेशल नोट, तो आपको यहां आना है। यहां आने का मतलब ये वीडियो एक बार देखनी है तो स्पेशल नोट समझ में आ जाएगा। स्पेशल नोट सिंपल है, कपिल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू सुनील ऑफ ₹1,50,000। ये एक लाइन है, इसकी एंट्री सिखा रहा हूं मैं आपको। कपिल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट, कपिल ने एक बैंक ड्राफ्ट था, बैंक ड्राफ्ट किसी रूप में भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है, डीडी के थ्रू भी हो सकता है। तो ये कपिल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट, कपिल ने एक सेंड किया बैंक ड्राफ्ट सुनील को 1.5 लाख रुपए का। अब ये 1,50,000 का जो सेंड किया है, ये 1,50,000 रुपीस का जो कपिल ने सेंड किया है वो सुनील को सेंड किया है। क्यों? क्योंकि उसको नीड होगी, कपिल को देने होंगे, कोई भी रीजन हो सकता है, बट इस लाइन का मतलब है कपिल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू सुनील। क्लियर है? तो यहां 2 बुक्स मेंटेन होती है, जर्नल ऑफ सुनील और जर्नल ऑफ कपिल। जर्नल ऑफ सुनील और जर्नल ऑफ कपिल। सुनील की बुक जर्नल में क्या एंट्री होगी और कपिल की जर्नल में क्या एंट्री होगी, लेट्स अंडरस्टैंड। क्लियर? कपिल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट, अगर ये जर्नल सुनील की है तो हमारा थॉट ऑफ प्रोसीजर क्या होगा? आवर थॉट ऑफ प्रोसीजर इज दैट सुनील के लिए ये क्या है, आर थॉट ऑफ प्रोसीजर व्हाट, कि सुनील के अकॉर्डिंग देखना है। जब जर्नल सुनील की बन रही है तो सुनील के अकॉर्डिंग देखना है, जब जर्नल कपिल की बन रही है तो थिंकिंग जो होनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? कपिल के अकॉर्डिंग। अब मैं सुनील की बात कर रहा हूं, कपिल ने सेंड किया बैंक ड्राफ्ट सुनील को, तो सुनील इज द रिसीवर, राइट और रॉन्ग? जब कपिल ने सेंड कर दिया बैंक ड्राफ्ट सुनील को तो सुनील कहेगा मेरे पास तो आ गया, तो सुनील इज द रिसीवर। क्या आया? अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। गिवर कौन है? कपिल सेंड कर रहा है तो गिवर कौन हुआ? टू कपिल्स अकाउंट। गिवर कौन हुआ? टू कपिल्स अकाउंट। ये एंट्री क्लियर है? अब सोचो जर्नल ऑफ कपिल है तो कपिल के थॉट से पॉइंट किसका होना चाहिए? कपिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? थिंकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कपिल। जर्नल ऑफ कपिल, कपिल सेंड कर रहा है बैंक ड्राफ्ट तो ऑब्वियसली बात है रिसीव कौन कर रहा है? कपिल सेंड कर रहा है बैंक ड्राफ्ट को तो रिसीव कौन कर रहा है? सुनील। सुनील डीआर। और कपिल सेंड कर रहा है तो गोज आउट क्या है? अमाउंट, पैसा। गोज आउट क्या है? अमाउंट, पैसा। कपिल के पास से पैसा जा रहा है, बैंक ड्राफ्ट का मतलब कोई चेक है, अमाउंट है, वो भी जा रही है, गोज आउट है तो गोज आउट। रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख। ये एंट्री जरूर आप एक्सप्लेन मैंने जो की है इसको ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें।